Hello students, welcome back. So I welcome you all to yet another session of Rotational Dynamics chapter. So I hope you all have gone through the first two lectures, the first two sessions, wherein we discussed about what is circular motion, types of circular motion, certain examples of that, few quantities related to circular motion also we introduced like radius vector, angular displacement, angular velocity, angular acceleration, etc. Then we discussed about what is time period, what is frequency. Okay. Then towards the end we related linear motion quantities with circular motion quantity. Like in linear motion we have displacement s, in circular motion displacement is theta, and relation is s is equals to r theta. Similarly linear velocity v, angular velocity omega, relation is v is equals to r omega. Linear acceleration a, angular acceleration alpha, relation is a is equals to r alpha. Now in this particular session, which according to me is the most important part of circular motion chapter, okay? So I want you all to give your 100% as far as these concepts are concerned. Okay. Now during last time in one of the live session, one of the student had asked me a question that, sir, although the particle is performing circular motion, why does it have linear velocity? So today's lecture will start with that answer because it is all related. Okay. So let's begin, student. Now consider that this is a particle performing circular motion, or there is a particle performing circular motion along the circumference of the circle. ठीक है ना, एक पार्टिकल इस सर्कल के सर्कमफरेंस के अलॉन्ग सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ओके. अब अगर मैं इसके मोशन को बहुत छोटे छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्कस करूं, मीनिंग मैं इसके मोशन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूं एंड सी व्हाट हैपेंस. ओके. जैसे बच्चों देखो यहाँ पर सपोज वो पार्टिकल यहाँ से बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में यहाँ पहुंचा. So now these are two radius vectors. The angle traced by the radius vector at the center of the circle will be called as angular displacement, and the rate at which the angle is traced is the angular velocity. वो फिलहाल मेरा इंटरेस्ट नहीं है. मुझे आपको ये समझाना है बच्चों कि अगर इस सेक्शन को, अगर इस पार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करूं, मतलब इसको थोड़ा सा एनलार्ज करूं, दिस पार्ट. So if I enlarge it little, ये जो आर्क है, आर्क this, okay, if this interval, ये जो यहाँ से A से B जाने का जो इंटरवल है टाइम डेल्टा t, very small interval of time, if that tends to zero, my dear student, ये जो arc length है, this will almost be a straight line. Now it is very difficult to digest at this level, but if I give you example, आप वो easily समझ जाओगे. मैं आपको ये समझा रहा हूँ बच्चों कि इस इतने बड़े सर्कल का अगर मैं एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं तो छोटा सा पार्ट एक स्ट्रेट लाइन होता है. ना आपने कई बार ये एग्जाम्पल पहले भी सुना होगा तो अच्छी बात है, और नहीं सुना है तो शायद आज के बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा. नाउ वी ऑल नो दैट आवर अर्थ इज स्फेरिकल इन नेचर. हाउएवर इफ आई टेक अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, लाइक आपके घर से स्टेशन तक का जो रास्ता होगा वो, या बस डेपो तक का जो रास्ता होगा वो, या आपके घर से पास वाले बिल्डिंग का जो रास्ता होगा वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हमको लगता है, या जितने भी रास्ते पर आप ट्रैवल करोगे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन सा लगता है. क्यों? क्योंकि इतने बड़े अर्थ जिसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है, उसके कर्वेचर का वो जो रास्ते वो एक छोटा सा हिस्सा है. सो अगर बहुत बड़े सर्कल का मैं एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करूंगा तो दैट छोटा सा पार्ट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन. ये क्लियर है बच्चों? ठीक है. नाउ जब अपना पार्टिकल ए से बी जा रहा है इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0, उस दौरान जो उसने रास्ता ट्रैवल किया बच्चों वो जूम करने पर ऐसा दिखेगा. अब अगर मैं ये सर्कल यहाँ से हटा दूँ, छुपा दूँ, और आपसे बोलूँ ये ए बी क्या है, तो मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर इट इज अ स्ट्रेट लाइन. नाउ टू गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट, देख ये आप सबके सामने मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है. ठीक है.
ओके, अब इस सर्कल को आपके सामने मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इस पूरे सर्कल का आई एम गोइंग टू कंसिडर अ वेरी स्मॉल पार्ट, वेरी 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 स्मॉल पार्ट। नाउ सी, आप सब घर बैठे बैठे ध्यान से देख सकते हैं। हाँ, यू मे फील दैट बोर्ड पर कुछ बचा ही नहीं है, बट बच्चों बोर्ड पर ये वाला पोर्शन बचा है जिसको मैंने पर्पसली रखा है। सी हियर, ये इसका एक एंड और ये इसका दूसरा एंड। नाउ बिटवीन दीज टू एंड्स इफ पॉसिबल जूम करके देखना, जो सर्कल का हिस्सा है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन है। सो मेरा पॉइंट ये है बच्चों कि ऑल्दो हमारा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में जब वो सर्कमफरेंस के अलोंग चल रहा है इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, उस वक्त मैं बोलूँगा वो स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है। एंड दैट इज द रीजन वाई बच्चों, ऑल्दो अपना पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, पार्टिकल के पास स्ट्रेट लाइन वाली वेलोसिटी भी होती है। ओके, सो ये जो वेलोसिटी है बच्चों जो ए से बी के अलोंग है यहाँ पर इस डायग्राम में, उस वेलोसिटी को अगर मैं सर्कल के अलोंग ड्रॉ करूँ स्ट्रेट लाइन तो कुछ ऐसा आएगा, एंड दैट मीन्स इट इज अलोंग द टैंजेंट, अलोंग द आर्क नहीं बोलोगे बच्चों, बिकॉज आर्क वापस से एक कर्व पाथ हो गया और लीनियर वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन होती है। सो सर्कमफरेंस के अलोंग अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हमेशा टैंजेंट होगा। दैट इज द रीजन वाई माय डियर स्टूडेंट, अगर वो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूले लिखे तो मैंने लिखा था लीनियर वेलोसिटी को सर्कुलर मोशन में हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। So although the particle is performing circular motion in a very small interval of time as seen in the diagram from A to B, the particle will have linear displacement as well as linear velocity. Okay, so आपका particle भले ही circular motion perform कर रहा है but छोटे छोटे interval में आपके particle के पास linear displacement भी है और linear velocity भी है, इसीलिए उसके पास linear acceleration भी आएगा A, जिसका result हमने last time देखा था। सो आई होप दिस क्लियर्स अ लिटिल बिट। ओके, और आज का लेक्चर हमको इसके बारे में ही पढ़ना था, ठीक है। सो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम सर्कल को मैं स्ट्रेट लाइन लूंगा, इसलिए उसके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए उसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी, इसलिए उसके पास लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा, बट वो अलॉन्ग द टैंजेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? गुड, वेरी गुड। सो यहाँ पर मेरे पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी है जो अलोंग द टैंजेंट है। ओके, अब ये जो लीनियर वेलोसिटी है बच्चों, इसका वेक्टर फॉर्म आपको याद रखना है जो आप 11th क्लास में डिराइव कर चुके हो। v वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। फॉर योर 12th स्टैंडर्ड चैप्टर इसके डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर ये रिजल्ट बहुत काम का है बच्चों, बहुत काम का। v वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, और व्हेन यू राइट इट्स मैग्नीट्यूड आप लिखते हो v इज इक्वल टू ओमेगा r साइन थीटा। देख अभी कॉन्सेप्ट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा, राइट, विथ थीटा इज एंगल बिटवीन अरे a क्रॉस b ना, तो ओमेगा वेक्टर एंड r वेक्टर। नाउ ट्राई टू रिकॉल माय डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ओमेगा वेक्टर इज एक्सियल वेक्टर, अलोंग द एक्सिस होगा वो, और ये रेडियस वेक्टर इज अलोंग द रेडियस। सो अभी मुझे बताओ आप घर बैठे बैठे, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, अगर सर्कल ऐसा था सो दिस वाज एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये रेडियस है। सो अब देख सर्कल के एक्सिस और रेडियस के बीच में एंगल कितना है 90, किसी भी जगह पर। सो अगर एंगल 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, और अगर साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होगी, इसीलिए जब मैं फॉर्मूला लिख रहा था लास्ट लेक्चर में, थीटा इक्वल टू 90 फॉर cm, cm स्टैंड्स फॉर सर्कुलर मोशन, वी कैन से दैट v का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा r ओमेगा। सो द करेक्ट रिलेशन इज v वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, magnitude of v vector is omega r sin theta, where theta is angle between omega vector and r vector. When particle is performing circular motion, the angle between omega vector and r vector would be 90 degrees, and that is the reason why v is equals to r omega. Followed everyone? Clear है बच्चों ये बातें? बहुत जरूरी है बच्चों, ये v vector is omega cross r.
एवरी डे इसको बार बार रिवाइज कर. V vector is omega vector cross r vector in case of circular motion. Are we clear? Okay. So अगर आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपने कॉपी कर लिया है, तो भी आगे का डिस्कशन करते हैं. बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, 100% नॉलेज. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब बच्चों, सो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लीनियर वेलोसिटी है उसके पास. चलिए फिर से एक बार अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, लेट मी ड्रॉ सर्कल वंस अगेन. ये सर्कल, ये सेंटर, ये रेडियस वेक्टर. अगर ये सर्कुलर मोशन ऐसा है, सो सर्कल ऐसे से घूमने वाला है. सो सेंटर को परपेंडिकुलर लाइन का नाम था एक्सिस. ये वाला एक्सिस हो जाएगा, ये वाला एक्सिस हो गया. राइट हैंड के फिंगर्स को इसके अराउंड कर्ल करोगे और थंब आपकी तरफ आ रहा है बच्चों. दैट मीन्स इस सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी जो कि आपकी तरफ है, आउटवर्ड, को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. हाँ, अभी ये भी एक कन्वेंशन है बच्चों जो आपको पता होना चाहिए. अगर सर्कल के अंदर क्रॉस है, इसका मतलब वो वेक्टर आपके स्क्रीन को या बोर्ड को परपेंडिकुलर है एंड इट इज गोइंग इनसाइड. और अगर सर्कल के अंदर डॉट है तो इट इज परपेंडिकुलर टू बोर्ड एंड कमिंग आउटसाइड. प्लीज, दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड. दिस इज क्रॉस मतलब इट इज इनसाइड and dot मतलब it is outside. These are conventions that we follow. So अगर dot होगा मतलब आपकी तरफ आ रहा है, cross मतलब आपसे दूर जा रहा है. बेसिकली ये कन्वेंशन एरो हेड के हिसाब से है. अगर एक एरो आपने देखा होगा, एरो जानते हो आप, बो एंड एरो वाला एरो. सो अगर मैं एरो को आपकी तरफ फायर करूं, सो जब एरो आपकी तरफ आ रहा होगा तो आपको ये टिप दिखाई देगा. टिप यानी आपको क्या दिखाई देगा? एक डॉट. सो व्हेन इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बाहर की तरफ आ रहा है, सो इट विल बी अ डॉट. और अगर ये एरो आपसे दूर जा रहा है, अगर एरो ऐसे फायर किया होता, आपसे दूर जाता, तो आपको उसका टेल दिखाई देता. मानता है बच्चा? अगर ये एरो आपकी तरफ आ रहा है तो आपको डॉट दिखाई देगा, टिप. और अगर एरो आपसे दूर जा रहा है तो क्रॉस दिखाई देगा. सो क्रॉस मतलब आपसे दूर यानी अंदर जा रहा है. डॉट मतलब आपके पास यानी बाहर आ रहा है. ओके, एवरीवन इज अंडरस्टूड दिस. सो इनसाइड डॉट, माफ कीजिए, क्रॉस एंड आउटसाइड डॉट. वेरी नाइस, बहुत अच्छे. अभी देखो, सो ये सर्कुलर मोशन है. ये अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये वाले पॉइंट पर उसकी लीनियर वेलोसिटी ऐसे आएगी. दिस इज डायरेक्शन ऑफ v. ओके, सो ये v वेक्टर है. प्लीज ध्यान से सुनना. अब थोड़ी देर के बाद जब पार्टिकल यहां पहुंचा होगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो वेलोसिटी, रेडियस वेक्टर अभी भी ऐसा होगा, along the radius away from the center. This is direction of velocity vector. जब पार्टिकल यहां पर आएगा, ये पोजीशन वेक्टर ऐसा होगा और ये होगा tangential velocity का डायरेक्शन. सी, tangential velocity is along the tangent ना उस वक्त का. So v vector ऐसा होगा. So now my dear student, are you able to understand this point? कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी टैंजेंशियल वेलोसिटी टैंजेंट के अलोंग तो है, पर हर घड़ी उसका डायरेक्शन बदलते रहता है. नाउ यू गॉट टू विजुअलाइज दिस माय डियर स्टूडेंट, कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी है, और वो लीनियर वेलोसिटी सर्कमफरेंस के अलोंग भी है, और वो जो वेलोसिटी है मतलब टैंजेंट के अलोंग है, आई मीन टू से, और वो जो वेलोसिटी उसका डायरेक्शन एवरी इंस्टेंट, हर घड़ी बदल रहा है. यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे. सो एट एवरी इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग. अब यहाँ पर एक पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है. समझोगे तो इजी है और नहीं समझोगे तो रट्टा मारोगे, बट ऐसा मत कर. सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो मेरे सवाल का जवाब दो. जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी टैंजेंशियल वेलोसिटी जो होती है या जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसका डायरेक्शन कांस्टेंट या चेंज होता है? घर बैठे बैठे आंसर दो. यस, वेरी गुड. उसका डायरेक्शन चेंज होता है. सर उसका मैग्नीट्यूड का क्या होगा? सो मैग्नीट्यूड के लिए वी हैव टू यस गो टू टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन. सो अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है,
सो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। सी मैं बच्चों में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ, और उतना तो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि आपको ये रीड करने आता हो। ऐसा बोलो ना मॉड ऑफ वी इज कांस्टेंट, तो नहीं अच्छा है। यू शुड बी एबल टू रीड इट एज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ओके, सो जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, सो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि v कांस्टेंट है, v, पर उसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ v चेंजेस। ठीक है बच्चों, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब सर अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म की जगह पर नॉन यूनिफॉर्म हुआ, नॉन यूनिफॉर्म, ये तो छोटा बच्चा भी बोल सकता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, यानी मैं बोल सकता हूं v भी कांस्टेंट नहीं है, और डेफिनेटली उसका डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा। देख बेटा, याद रख एक बात, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुआ तो सर्कल कैसे बनेगा? देख, कॉमन सेंस हमको क्लिक नहीं होता है। अगर मान लो, हालांकि आपके सामने स्क्रीन छोटी है, आपके सर अगर ऐसे चले, ऐसे, तो सर एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। सो जब तक सर स्ट्रेट लाइन में चल रहे होंगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो सर तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे, सर्कल कैसे बनेगा? अगर सर्कल बनना है तो उसको टर्न तो लेना पड़ेगा ना बेटा, और जैसे ही वो टर्न लेगा, क्या उसको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स। सो अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। कॉन्फिडेंट? सुपर, वेरी नाइस। ओके, फिर से एक बार, कोई भी सर्कुलर मोशन हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर सर्कल बनाना है तो टर्न तो लेना पड़ेगा, और अगर टर्न लेना पड़ेगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, और डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो मैं हमेशा बोलूंगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस इन बोथ द टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हाँ, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका मैग्नीट्यूड विल बी कांस्टेंट, और अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जब हम लाइव डिस्कशन के लिए मिलेंगे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट ये सब आप लर्न करो। और लर्न करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ सको तो। सर्कल बनने वाला है, सर्कल बनेगा कब? जब टर्न लेगा, और टर्न लेगा तो डायरेक्शन चेंज होगा। तो चाहे कोई भी सर्कुलर मोशन हो, डायरेक्शन तो चेंज होने ही वाला है। खाली क्या डिस्कशन करना चाहिए? स्पीड कांस्टेंट है या स्पीड चेंज हो रही है? सो अगर स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। एक और बात देख, जैसे जैसे हम बातें करेंगे पॉइंट्स याद आते जाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज आल्सो नोन एज स्पीड, और सर ने जब डिफाइन करा था तभी ऐसा लिखा था, स्पीड इज कांस्टेंट, नेवर से वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड इट हैज डायरेक्शन, है ना। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड कहते हैं। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आप बोल सकते हो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है। Now take a pause of 1 minute and revise for yourself. हाँ, सच्ची कह रहा हूँ, 1 मिनट का पॉज ले ले और सब कुछ अपने लिए रिवाइज कर। ओके, नाउ चाहिए तो आंखें बंद करो और जो मैं कह रहा हूँ उस पर फोकस कर। जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0, वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और वो स्ट्रेट लाइन सर्कल के टैंजेंट के अलॉन्ग होगी। इसलिए जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसके पास टैंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी, और वो टैंजेंशियल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म इज v वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर फॉरगेट इट। सो इन मैग्नीट्यूड v विल बी इक्वल टू ओमेगा r sin theta. So what is theta there? Angle between omega vector and r vector. For circular motion, omega vector is along the axis and radius vector is along the radius. So omega and r are having angle of 90 degrees. So sin of 90 will be 1. इसीलिए हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं v is equals to r omega. Alright.
फिर हमने देखा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ऐसे इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो थंब आपकी तरफ आ रहा था, सो एंगुलर वेलोसिटी इज आउटसाइड ऐसे, और रेडियस वेक्टर ये रहे, सो वापस से एंगल 90 है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? हाँ, अब आपने ये ऑब्जर्व किया कि हर वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वो तो कॉमन सेंस है। देख, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, जब डायरेक्शन चेंज होगा तब तो जाके सर्कल बनेगा। यानी मैं ऐसा एक स्टेटमेंट दे सकता हूं जो आपको लिखना है, हर सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा। हाँ, उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर चाहे कोई भी टाइप का सर्कुलर मोशन हो, डायरेक्शन ऑफ वी विल ऑलवेज चेंज। आर वी क्लियर? अगर ये बात समझ में आई है तो वी कैन नाउ डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे, शाबाश। और अगर अभी भी आपको डाउट है तो अभी का अभी स्क्रीन पॉज कर, या अभी आगे मत बढ़, पीछे वाली बात को रिवाइज कर। इट इज द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, कई सारे क्वेश्चंस लोगों को चैलेंजिंग लगेंगे, आप इजीली बता पाओगे, और यहाँ पर कई बार बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है, बट इफ यू अप्लाई कॉमन सेंस कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, फाइन। ओके, सो यू कैन जस्ट कॉपी इट डाउन। चल, अभी आगे बढ़ते हैं। सो हमने क्या बोला? हमने बोला सर कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, बराबर? यस सर, एकदम बराबर। सो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो उसके पास एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? देख सर, एक अचानक से एक नए स्टेप पे चले गए। जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा तो उसके पास एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? व्हाट वाज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी एक्सेलरेशन आएगा। सो वेलोसिटी का चेंज होना मतलब सर उसके वैल्यू का चेंज होना, कोई जरूरी नहीं बेटा, वैल्यू चेंज होगा तो भी चलेगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो भी चलेगा। तो एक नया पॉइंट अपनी बुक में लिख, हर सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगा ही होगा। सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होगा ना, क्योंकि चाहे कोई भी सर्कुलर मोशन हो, क्या उसको टर्न लेना पड़ेगा? यस सर। अगर उसको टर्न लेना पड़ेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। यस सर। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा। याद रखना बच्चा, एक्सेलरेशन आने के लिए स्पीड चेंज होना जरूरी नहीं है, एक्सेलरेशन आने के लिए वेलोसिटी चेंज होना चाहिए, और वेलोसिटी का चेंज मतलब या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन। कंफ्यूज मत हो, गिव अप मत कर, सुन ध्यान से। एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड में चेंज, या तो उसके डायरेक्शन में चेंज, या तो दोनों ही चेंज। अब अगर कोई भी सर्कुलर मोशन है बच्चों तो डेफिनेटली डायरेक्शन तो चेंज होने ही वाला है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है। लिखिए सब, हर सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, इसलिए हर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होगा ही होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म हो। बच्चों समझ में आया? whether it is uniform motion or it is non-uniform circular motion, in every circular motion velocity will change in direction, and therefore since velocity is changing in direction there has to be an acceleration responsible for this. And if there is an acceleration my dear student, F is equal to m into a, अगर acceleration है तो force भी आने वाला है, यानी हर सर्कुलर मोशन में फोर्स तो रहेगा ही रहेगा। सर्कुलर मोशन बिना फोर्स के एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब इसको भी कॉमन सेंस से जोड़ा जा सकता है। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? जो बॉडी है वो वैसा है जैसे ही रहना चाहता है, अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहता है, अगर चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा जब तक कि उस पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अब अपनी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही कि डायरेक्शन चेंज कर रही है, गोल गोल घूम रही है, सो डायरेक्शन अगर चेंज करना है तो उस पर फोर्स आना ही आना है। समझा? हाँ, ऐसे ही स्माइल दे, वेरी नाइस। सो हर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा ही होगा। क्यों होगा सर? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, और अगर वो एक्सेलरेटेड होगा तो उसमें फोर्स आना ही आना है। क्यों आएगा? अरे एक्सेलरेशन है तो फोर्स आएगा ही आएगा। इनफैक्ट फोर्स है तो जाके डायरेक्शन चेंज होगा। समझ में आ रहा है? बिना फोर्स के डायरेक्शन कैसे चेंज होगा?
सो एवरी सर्कुलर मोशन में कौन सी तीन बातें फिक्स है? पहली, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा हर सर्कुलर मोशन के लिए। दूसरा, हर सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन आएगा। तीसरा, हर सर्कुलर मोशन में फोर्स भी होगा ही होगा। बिना फोर्स के सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसकी डेप्थ में हमको जाना है, एकदम स्ट्रॉन्ग बन के बाहर निकलना है। फिर पहले बता, इतना समझ में आया? ओके फाइन, वेरी गुड। अब बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट जो अपने लिए जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है। चलो इधर देखो, दिस विल रिक्वायर लॉट ऑफ concentration and understanding also on your part. ठीक है, let me start. चल, so सर ने क्या बोला? What is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. What do you mean by change of velocity? Change of velocity can be change in magnitude of velocity, यानी कि स्पीड चेंज होना, और इट कैन बी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इट कैन बी चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, बहुत ही बेसिक है बट पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी कैन बी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी स्पीड का चेंज होना। इट कैन बी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो अभी हमने देखा हर सर्कुलर मोशन में होगा, और इट कैन बी चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, येट अ लिटिल कंफ्यूजिंग। ठीक है, तो साथ में रहे। ठीक है बच्चों, सो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी बुक में ये कॉपी कर ले, सो दैट आई गेट मोर स्पेस टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। इसको लिख लो बच्चों। ओके, ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी कैन बी चेंज इन मैग्नीट्यूड, दैट इज स्पीड, चेंज इन डायरेक्शन, और चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड स्पीड। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको याद दिला दूं मैं। क्या था बच्चों? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बराबर, सिंपल। मोशन इन वन डायमेंशन आपने पढ़ा है, या ये बेसिक बचपन से पता है कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो स्टेटमेंट लिखा था उसका मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, बट व्हाट इज वेलोसिटी इटसेल्फ? वेलोसिटी खुद क्या है? सो आप बोलोगे इससे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बराबर, हाँ, और डिस्प्लेसमेंट को हम पोजीशन वेक्टर के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। सो वेलोसिटी ds बाई dt भी होता है, और वेलोसिटी dr बाई dt भी होता है। सो यार क्या है? रेडियस वेक्टर। हाँ, क्या हमने रेडियस वेक्टर को ही पोजीशन वेक्टर बोला था? और पोजीशन का चेंज होना यानी कि वेलोसिटी हो आना, समझा? सो जरूरत पड़ने पर v को dr बाई dt भी लिख सकते हैं। एक और रिजल्ट है बच्चों जो आपको पता होना चाहिए कि v वेक्टर इज नथिंग बट ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये भी पता होना चाहिए। दीज आर ऑल बेसिक्स विच वी विल रिक्वायर। और एक बेसिक आपको पता होना चाहिए बच्चों कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सो आगे पीछे नहीं लिख सकते आप। ठीक है, और एक रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन नाम का जो मैथमेटिकल चैप्टर है उसमें डेरिवेटिव में आप u इंटू वी पढ़ते हो। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, सो इट इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अगर आपको नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v कैसे लिखेंगे? इट इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v को कांस्टेंट रख और u को डिफरेंशिएट कर। सो इट इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, u derivative of v plus v derivative of u. Okay, so this will take a lot of space, so I am not going to keep it on the board. I hope everyone is familiar with these things now. अब बच्चों मुझे पूरा अटेंशन यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। यस, चलिए, सो अब जो एक्सेलरेशन वाला पार्ट है मेरे बच्चों, सर्कुलर मोशन का एक्सेलरेशन, उसको मैथमेटिकली पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो कॉन्सेप्चुअल बताया था, थ्योरेटिकल बताया था कि डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आने ही आना है।
उसी चीज को मैथमेटिकली पढ़ते हैं, फॉर्मूला की मदद से पढ़ते हैं। चलो आ जाओ इधर। सो वी आर डिस्कसिंग एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। जब लाइव लेक्चर होगा ये सब पे मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या ओरल्स आपसे पूछूंगा, तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट वेरी नाइसली। ओके, नाउ चलो एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बराबर। दिस इज बाय डेफिनेशन। ये सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी नहीं है, ये हर मोशन में एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity, but for circular motion, yes, for circular motion जो v वेक्टर है, क्या वो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है? यस सर, मुझे पता है, वेरी नाइस। ओके चलो, सो ये सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर। सो एक्सेलरेशन विल बी डी बाई डी टी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सर क्या किया आपने, v वेक्टर को इधर सब्स्टिट्यूट किया। अब मुझे पता क्या ये डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी हो गया। सो इट इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। फॉर डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का u v रूल यूज करना पड़ेगा, जो कहता है u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। मेरे साथ रहना। सो ध्यान देना बच्चों, a वेक्टर विल बी इक्वल टू u ओमेगा वेक्टर क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ v। बच्चा ये समझा? सो इसको कांस्टेंट रखा और इसका डिफरेंशिएशन किया। क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज नहीं होता, इसलिए ओमेगा क्यों क्रॉस आर ऐसा लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे, v डेरिवेटिव ऑफ u। समझा? अगर आप ऐसा लिख रहे हैं बच्चा तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। क्या मिस्टेक किया सर? हो तो से u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। नहीं, तूने ये ऑर्डर चेंज कर दिया, ओमेगा क्रॉस आर, यानी ओमेगा पहले और आर बाद में आना चाहिए। बट से वो डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे फिर? देखिए ध्यान से देख, ये मिस्टेक आप लोग करते हो, इसलिए मैंने बताया। सी यू हैव टू राइट इट एज डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। देख बेटा, अभी भी क्या हो रहा है, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। एक बार ओमेगा कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव, आर कांस्टेंट, ओमेगा का डेरिवेटिव। 30 सेकेंड का पॉज ले और मुझे बता समझा कि नहीं समझा। टेक 30 सेकेंड, एक एक स्टेप देख। पहला स्टेप क्यों लिखा? अरे एक्सेलरेशन फाइंड करना, तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। दूसरा स्टेप क्यों लिखा? अरे एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में चाहिए, और सर्कुलर मोशन में v क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, इसलिए ये लिखना पड़ेगा। अच्छा ऐसा, ओके। तीसरे में सर ये क्या किया, अरे u इंटू वी है, सो दोनों को स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा। बट सर इधर ऐसा क्यों लिखा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डेरिवेटिव ऑफ v इंटू यू। तो इट इज क्रॉस प्रोडक्ट, सो द ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन्ड। a क्रॉस b को b क्रॉस a नहीं लिख सकते हो। सो इफ इट इज ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r, और ओमेगा क्रॉस r ही होना चाहिए। शाबाश, बहुत अच्छी। चल अभी आगे बढ़े। ओके चलो, अभी अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद है तो मुझे बता, क्या सर? अरे देख तो सही, डी ओमेगा बाई डी टी क्या था? व्हाट वाज डी ओमेगा बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसलिए पहला लेक्चर याद होना चाहिए। अभी अगर टेंशन आ रहा होगा तो तुमने रिवाइज नहीं किया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, so I will write it as alpha vector, and rate of change of r, rate of change of position is nothing but v vector, so उसको लिखेंगे v vector। यहाँ तक सब बच्चे साथ में? सुपर, वेरी नाइस। ओके, सो आई गॉट a vector is equal to omega vector क्रॉस dr by dt को सर ने लिखा v vector प्लस d omega by dt is alpha vector क्रॉस r vector। दिस इज द रिजल्ट फॉर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा डरावना है, बट डर मत, मेरे साथ रहे, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुन तो इजी लगेगा। सो ए वेक्टर इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आई बात समझ में बच्चों? सो ए वेक्टर का फॉर्मूला इज ओमेगा क्रॉस वी प्लस अल्फा क्रॉस आर। यहां तक सब समझ में आया?
ओके, सो जो अगला सेशन होगा बच्चों वो एग्जैक्टली यहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो आई विल टेक पॉज नाउ। आई होप ये सब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। जो अगला सेशन होगा वो यहीं से स्टार्ट होने वाला है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।